Okay, so in the last class, we have discussed about the why we are saying the risk and why we are saying the CISC. Okay, that is the concept. Okay, why we are saying that is a complex and why we are saying that is the reduced instruction set computer and why we are saying the complex instruction set computer. Till now, I have covered this thing that I am telling about the ARM processors. Okay, so many concept I have covered that the load store model which you have seen. So the means of that in the ARM you will deal with the registers only. You will not deal with the memory. Okay. But in the CISC register you will deal with the memory and the registers. Okay. So now I am going the further. I am not covering the last concept which I have told you already. So I am covering up the new concept for the ARM, that is the operation mode. Okay. So this is the introduction part. So I am telling you how many operation modes in the ARM. ARM has the 7 instruction mode. So here I will give you just name. After that I will give you the detail. I will tell you about the operation mode. I think uh, these mode I will cover up. Okay, in detail also. So you can see here there are 7 operation mode, that is the supervised mode, user mode, system mode, IRQ, FIQ, avert or undefined mode. Okay, so you can see here just I am giving glimpse here of the subject or introduction part. As you start the system, or you can say you just switch on the एक्सक्यूज मी सर, yes huh. सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? Oh sorry. Okay, I am sharing now. I am sharing the screen. Just wait. Sorry. वही मैं Okay, so now it is visible. यस सर. Okay, sorry. Now I am starting this. So you have the seven operation mode. These are the supervised mode, user mode, system mode, IRQ, FIQ. I will tell you in the detail these things about and this undefined mode. These are the 7 operation mode for the ARM. Okay, so just a glimpse. I am just telling you about when you start the ARM or you switch on the ARM, the supervised mode start. Okay, so I am telling the story. You are switching on the your ARM and switch off the ARM. Till now you have the 7 modes. Okay, so how it works you can see. First, when you will switch on the ARM, then supervised mode will work. After that, 99% time, 99% time you are working on the user mode, otherwise the system mode. Okay, 99% you are working on the user mode or system mode, means start working by the user, that is the user mode, and if you will go to the system part, that is the system mode. So both of these are similar, means you are working in the system mode and the user mode. Most of the time you are doing this. uh, these are modes are, you can say these are the interrupts mode, or you can say IRQ, that is the interrupt request mode. This is the fast interrupt request mode. So these mode you can say you are working only 1% in these mode, that is the abort mode and the undefined mode. So fast interrupt and the normal interrupt will come, then we will go for the these type of modes. After that, if the error mode will come, then we will avoid the we will avoid the means your work. After that, sometimes some miscellaneous error will come, then this is the undefined mode. So it will relate to abort, and from starting to switch on to switch off, these mode will work. Okay, so I will cover up these mode in also in the register part, so you can understand these better in that part. This time just I am telling you the name. Okay, and where it will come and where it will doing the work. Okay, I am telling you that part also. Okay, so 7 operation mode is there in the ARM. After that, 7 interrupts are also there. So interrupt means, if you will do in this thing, so interrupt will not work in these two mode. In these two mode, user mode and system mode, interrupt will not work. Okay, but in other mode, interrupts will work. That is the 7 type of interrupt is present in the ARM. Hello. Again I am telling the name only, so I will cover up these thing also again and again. So this time I am giving you the introduction part, so you can understand there are the 7
operation mode and the 7 interrupts, that is reset, undefined, prefetch abort, data interrupt abort, software interrupt abort, IRQ and FIQ. So interrupt will not work in the user and system mode. ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है. Okay, so user mode and system mode, the interrupts will not work. Okay, so remember this part. Okay, so remember this thing. Okay, so I am just giving you the name like this. I am telling you ARM will work in the 7 address mode also. That is the, you have already studied in the 8086 like this type of thing you have studied already. That is the immediate, direct register, register indirect, register relative, based index and based skill indexed. If I will get the time, then I will go for this thing also. Okay, then this is a 7 address mode for the ARM processors. Okay, so ARM processor would work in these address mode. So again I am giving you the name. So these names I am giving you, that is the operation mode, after that the 7 interrupts, after that the 7 address mode. Now one thing, last thing for the introduction part I am just telling you, that is the, here you can use the 3 type of data. 3 type of data means you can use the 8-bit type of data, that you can say that is a byte. Second, you can use the 8 type of data, that is the half word, and third is the 32 type of data. Most of the time you are working with this data, 32-bit data, that you can say that is the word. Okay, here you are saying that is the half word. So already you know, if there are 8-bit present, so that is the universal thing, you can say that is the 1 byte. Okay, but when I will tell you about the word, it will depend on the processor. If the processor is 16-bit, then you will say that process 16-bit means I can say that is the 8086. So 8086 my, yes, ask me. Sir, हाँ बेटा, just tell me. कोई लीव कर रहा है क्या? एक सेकंड, मीटिंग. हेलो सर मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने से पहले ही मुझे रिमूव कर दे रहा है Yeah, बार। I know. So I just may change the settings. So I don't know who is doing this. Means अब मैं गाली देने का मन कर रहा है, बट ये रिकॉर्डिंग में जाएगा वॉट एवर. रिमूव तो कर प्लीज़ डोंट डू. मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, बट मेरा कंसंट्रेशन आप लोग ब्रेक कर देते. जो भी एक दो बच्चे, ये एक बच्चे ही होगा आई थिंक, मोस्टली बच्चे ठीक है. ओके, एनीवेज लीव दैट. मैंने सेटिंग चेंज कर दिया, अभी कर. रिकॉर्डिंग बंद करके दे देना. हाँ, रिकॉर्डिंग उसे हटा के पार्ट देना पड़ेगा, क्या करूँ यार. फिर यही करो, बैठ के रिकॉर्डिंग से पार्ट हटाओ भाई. जब क्लास हो फिर अच्छा खासा मोशन चला. एनीवेज चलो. ओके, सो 8-bit मीन्स 1 byte. ओके, सो व्हेन आई विल से द वर्ड, always remember word is depend, word, this is the universal thing means every time when I will use the word byte, so you can understand 1 byte, that is the 8-bit. Okay, but when I will use the word, okay, one word, so then I have to know which type of processor is this. Okay, if the processor is 16-bit, then you will say one word is the 16-bit word. If the processor, ARM processor, has the 32-bit, okay, so if I am using the word for the ARM, then I will say that is the 32-bit. That's why I am saying this word. If the 16-bit is present, then I will say that is the half word. So remember this thing. You can use the 3 type of data in ARM. That is the 1 byte, means byte, 8-bit data. Second, half word, that is the 16-bit data, and third is 32-bit data. That is the word. For 8086, if I am telling you 8086, then I will say that is a 16-bit. Okay, then I will say that is the word for the 8086. So you will remember this is the processor thing, means the processor size defines the word. If the processor size has a 16-bit, then word has a 16-bit. If it has the 32 bits, then the processor, the word will be 32 bit. Okay, so this thing is clear to you? Sir, हाँ बेटा.
सर फिर ये जो आपने ऊपर 16 बिट हाफ वर्ड लिखा फिर वो कहाँ यूज करेंगे? हाँ वही तो बताया, देखो मोस्टली टाइम हम लोग करते हैं वाइट, ओके, एंड वर्ड, ओके, देयर इज नो थिंग ऑफ हाफ वर्ड, बट हियर थ्री टाइप ऑफ डेटा वी आर मेकिंग, ओके। ये तो हो गया 8 बिट के लिए, दिस इज फॉर 8 बिट, दिस इज फॉर 32 बिट, बट यहाँ पे थर्ड टाइप का डेटा और यूज होता है जिसे 16 बिट बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नाम अरेंज कर दिया, ये यूनिवर्सल नेम नहीं है, ये मैंने बना दिया, दैट इज द, मैंने मतलब जो भी वर्क ठीक करते हैं है। उसे हाफ वर्ड का नाम दे दिया, दैट इज द हाफ वर्ड, ओके। मोस्टली टाइम यू विल यूज दिस थिंग एंड दिस थिंग, बट वी आर मेकिंग थ्री टाइप ऑफ डेटा वी आर यूजिंग, सो वी आर मेकिंग दैट हाफ वर्ड ऑल्सो यूज्ड इन द ARM प्रोसेसर्स, ओके, कहने के लिए, समझाने के लिए। सो दिस इज द थिंग, सो इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, सो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ सभी पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर द ARM इंट्रोडक्शन पार्ट। सो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जो लोग कल क्लास में थे वो समझ पाएंगे। ओके, सो ARM इज 32 बिट ALU प्रोसेसर और 32 बिट प्रोसेसर, दिस इज क्लियर? ये आपको याद था, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट वाज 32 बिट डेटा बस, इट हैज द इट इज 32 बिट डेटा बस। और यहाँ पे मैंने कई चीजें आपको समझाया था, दैट इज द अलाइन, मिस अलाइन डेटा, दैट इज द अलाइन डेटा, वो मैं अब दोबारा उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि मैंने ये पार्ट कवर किया था। आफ्टर दैट आई हैव कवर अप दैट what is the what is the means of this flexibility and the performance based. So ARM is the performance based processor, that's why that is the RISC processor, and that's why that is the name of this processor is the advanced RISC processor, okay. And this processor basically based on the flexibility oriented, this is flexible because the all instruction have the same size in the RISC processor, or you can say ARM processor, and the ARM processor has the 32-bit instruction, and all the instruction has the one size, means all the instruction has the 32-bit bit size, okay. So that is the difference between CISC and RISC, means in this processor you can use the different type of instruction, means 8-bit, 16-bit, 32-bit, but in the RISC you can use only the 32-bit instructions. So that's why I am saying this is the rigid, but performance will be good. This is flexible, but the performance will be less in the CISC processor. तो मैंने ये difference भी आपको समझाया था. Then that is the 32-bit address bit. So the size of this ARM processor will be 4 GB. Okay. So I have covered this part. Again, this is based on the Ben-Newman model. So the Ben-Newman model use only the one memory for the for storing the program or the data. And second concept is that Harvard model, that split memory for the program and split memory for the data. Okay, so ARM based on the Ben-Newman model. After that, I just tell you about the pipelining. Most of the time, the ARM processor use the 3-stage pipelining. So I have the different type of examples for that, and I just told you the pipelining. So in the pipelining, you have already seen the instruction has the same size. This is the advantage for the pipelining. If the instruction will not have the same size, the pipelining will be tough or poor. So for the RISC, pipelining is the good, and for the CISC, pipelining is bad. Okay, so I have covered up this concept also. After that, I have taken the example of 5-stage pipelining. So 2 more thing will be covered here. So fetch, decode, execution. After that, memory access, and the right thing will be here. Okay, so after that, I will cover up the registers. So registers, I just told you that the ARM processor has the 37 registers. Okay, and at a one time 16 registers are available for the processing. So you can say this is 16 registers are general purpose register. Okay, GPR, general purpose register. So I will teach you this thing, registers, today only. Today, so you can understand how we can use the 37 register and what is the means of 16 registers are available. So what is the concept behind this? Okay, so here I just tell you about CISC processor use the memory and the register, and RISC processor only use the registers. Okay, so that's why the number of the registers here more, and the number of the register in the CISC processor is less. And after that, I just cover up this concept also. So you can say load store model. So same thing is there,
And risk consists what is the why we are saying this is the reduced, because it's use only one instruction for, because this instruction work only the register, but we have the different type of phenomena here, register and memory. You have to make the different type of instruction, means complex instruction you have to make. Like first instruction you are making the add m, second instruction you are making the add m2, third instruction you are making for the register and register, that is the add. But here you will make only the one register, because register is present here, here memory and register present here, so you have to make the combination. And so that's why we are saying that is a complex instruction set. There are many, for only for adding we are using the 3 instruction, here you are using 1 instruction. That's why I am saying this is the reduced instruction set computer, and this is the complex instruction set computer. This is the story, or from here I will cover up the today only. So these concepts are clear to you? Just tell me. All the concept I have revised. So this is these are the key points for the ARM processors. So I think these points are clear to you. Just tell me yes or no. Yes. Yes, Okay. Okay, very good. So now I am now I am coming directly to the difference between the CISC processor and the RISC processor. So you will tell me, means if you just learn this type of processor, so you will tell me, I will give you the hints and you will tell me. Okay, first anyone can tell me what is the full form of the CISC processor? So I will tell the name. So Complex instruction. okay, Neha telling. Okay, so that is the complex Instruction set computer. okay instruction set computer. Okay, after that I will take the name. So second, Shiv, you just tell me what is the full form of the RISC. Shiv, are you there? Okay, Siri, are you there, beta? Neha, just wait. I think microphone. Rahil, you can tell me what is the full form of the RISC. Come on, tell. Sir, reduce instruction set computer. Reduce instruction set computer. Okay, I am telling you this thing, or I am giving you this exercise because you will understand. Okay, so first you can understand here. This is the word complex here. Okay, here the reduced word. Okay, so what is the means why we are using the complex word here? Why we are using the reduced word here? Because it has the several instruction. Okay, it has the less instruction. Reduce की जगह में less लिखते रहो. Reduce instruction. Okay, so I am making the differences. Third, if I will ask you, just tell me which one of this the performance oriented. Just tell me. RISC. RISC, very good. So this is the performance oriented. RISC is the performance oriented. So you can write here performance. And CISC is CISC. Tell me about the what is the CISC? Flexible. The hardware Like- generated. No, not directly. You can say hardware generated, because hardware involved in both of the processors. Yes. Here you will say that is the flexible. Okay, flexible क्यों बोल रहे थे हम? बताओ कोई? क्योंकि Because align data और okay, very good. normalized data के Because साथ. very good. It can use the aligned data and plus misaligned data. And this can use only the aligned data. And second word you can write, that is the rigid part, and that is the flexible part. Again, it's the same thing. Okay, fifth one, just about the pipelining. Just tell me which one is good in the pipelining. Sir, RISC. RISC, very good. It is good in the pipelining. Why? Just tell me. Anyone can tell me why it is good in pipelining. सर वो That is- एक ही साइकिल में सारा काम Very करते good, थे. very good. If one cycle, you can use a one cycle, or you can say that is a fixed size of instruction. Fixed size of instruction.
ओके और यहाँ पे लिख सकते हो कि पुअर इन पाइपलाइनिंग, ओके, एंड वेरिएबल साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन. Okay, one thing, who will work for the memory and the register? RISC work for the registers only. Yes. Okay, and here you can write this will work from the registers and the memory. So all the concept are means from the one point you can generate the different points. So that these are the differences. Okay, so you just cover up all these concepts. Okay, so one thing I just want to ask you that if I am talking about the cost and power, okay, so who will be more costlier? So just tell me. Sir, CISP. Yeah, very good. Because it has the flexible nature, so the hardware will be more costly. Okay, because different type data bus you have to use, so hardware will be costly. So the cost is higher than the cost of the RISC processor. और वैसे भी मैंने एग्जांपल बताया था, RISC processor आपके कहाँ यूज होते हैं? If you will take the RISC processor, will use the mobiles. Okay, it will use the remote controls. Okay, it will use this processor will use mostly in the computers. Okay, so you can see here the computers more costly than the remotes and the mobiles, so the cost is higher in the CISC processor rather than the RISC processor. Powerful, if you will say, so you can again you can see the example, that is the computer and the mobile. So again you can say CISC processor is more powerful, even though performance is good for the RISC processor, but powerful is CISC processor. CISC processor is more powerful than the RISC processor. So powerful. So many concepts I have covered to teach you about the ARM, RISC and CISC, so you can understand. Some I just pointed out here, so you can see or you can learn from here. So I think these points are clear to you. So with the concept means why it is good rather than this, why it is good for pipelining, why it is aligned process and flexible performance, whatever. So I think these points are clear to you. So every point is clear to you. Just tell me. So this is the introduction part of ARM processor, and this is the CISC versus RISC. Okay, so these things are clear to you. Just tell me. अगर मैं कुछ और पॉइंट लिखने को कहूँगी तो आई थिंक लिखने को कहूँगा तो देन आई थिंक यू विल राइट 2 3 4 5 पॉइंट्स फ्रॉम द starting. If you will check all the PPTs, you will write more of the things you can write. Okay, so that part is clear to you? Just tell me. Yes. Please. Okay, so every student can respond. So that part is clear. Aviral, Siri, Rahil, Darsh. Yes, Okay. sir. Yes, Okay. sir. Okay, Pranav. सुबह बहुत से बच्चे क्लास ही नहीं कर रहे. आई एम लिटिल बिट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट. लास्ट सब्जेक्ट में तो निकलना आसान था. दिस सब्जेक्ट विल बी टफर इफ यू विल नॉट लर्न द कंसेप्ट, देन इट विल बी टफर, क्योंकि ये किसी किताब में रिलेट करके कोई नहीं. यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा, देन यू कांट रिलेट. if I will not tell you why it is flexible, why it is performance based, then no one can relate. just रटने से काम नहीं चल पाएगा. ठीक है. so I don't know बच्चे क्यों नहीं कर रहे, शायद इस बार का पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा होगा. anyways जो भी है, चलो. now the introduction part is covered. now I am jump to the second thing. just I have tell you about the registers. means I have told you that I will cover up the register part. Here where is the register part? Okay, so that is the 37 registers. 6 will be available for at a time. So I will teach you these. So I am just going to the second part, that is the register part. Okay, so I am opening the second PPT, that is the ARM register. Okay. Okay, good. So you can see now, just concentrate. Now I will tell you about the register. Now this is ARM processor. So I am teaching you the ARM 7. Okay, this is the ARM 7 register. Okay, this is the part, because this is the 32-bit and modern register. Most of the mobiles use the ARM 7. So I am teaching you this part, and some concept I will teach you for the other processor. But the working and the means you can say features of the
ARM processors are similar for every means variant. Some points are means increases in different variant. So, but this is a common thing for all the ARM processors. So first you will see. So I just telling you that are the means 7 operation mode. Okay, I tell you about the 7 operation mode. So you can see here some operation modes are written here. That is system user. So 1 and 2. This is 1. This is 2. That is the FIQ third, supervisor, abort, IRQ, undefined. I will tell you the name one by one. So I just tell you about that. There are 16 registers available at a time. So you can see from R0 to this is R0. So I am taking the user mode, or you can say system and user mode. This is similar mode. I have already told you about that. You can work 99%. You can work in the user mode or the system mode. So these mode use the 16 register. It will start from the R0. It is start from the R0 and it will goes till the R15. So if you will start from the R0, so one register is here and R1, R2, R3, R4. So till the R15, these are the 16 registers. So 16 registers, these are the general purpose registers for the ARM. And these registers are available for the users, okay, at a time. So you can see here, but now I am telling you these three registers you can see. So I am writing here R15, R14 and R13. These are the special type of register जो आपने पहले भी पढ़े थे क्या कहते हैं 8086 एंड 8085 में. सो सम रजिस्टर्स आर स्पेशल रजिस्टर, लेकिन उनका नाम स्पेशली नहीं रखा यहाँ पे आर से ही नाम दे दिया. दैट इज द R13, R14, R15, बट इट विल वर्क एज ए मीन्स R15 वर्क एज ए पॉइंट पीसी. और इसको आपको पता है पीसी की फुल फॉर्म कोई मुझे बताए जल्दी, एनीवन? किसी को याद नहीं पीसी की फुल फॉर्म? हेलो एनीवन? यार प्रोग्राम काउंटर. Just remember this thing now. When I teach you the architecture of the 8086 and 8085, I just tell the name about the PC. PC is the program counter. So every time in that particular processor, PC has the particular name and the particular register. But here R15 will work as a program counter. Okay. Now you can understand this R14 will work LR. This is the new name, that is the link register. I will tell you the definition and the working of this LR. So first you can just remember the name R14 will work as a LR, that is the link register, and the R13. So first don't see this part, only you can see this part. So R13 will work as a SP. So anyone can tell me the name of the SP, please? Stack pointer. Very good. So it is written here also. That is the stack pointer. So program counter, link register, and the stack pointer. Okay. So these three registers are the special register. It will work as the stack pointer, link register, and the program counter. And one more register is there. That is the CPSR. So the full form is written here. That is the current program status register. CPSR. करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर. और अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ फ्लैग इन द आर्किटेक्चर ऑफ 8086? जो रिजल्ट है उसका स्टेटस बताता है. वेरी गुड. सो अगेन you can relate this thing. CPSR, you can use this register as a flag register. Okay, so current program status register and the flag register, you can take the name flag register, is a similar thing. Okay, because it is showing the behavior or the status of the output. ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि फ्लैग क्या बताता है आपके पेपर में भी. So this is the CPSR will work as a flag register. Okay, so 16 register are here. Okay, and this is the flag register. So total till now you can add these registers. 16 registers are here. One register is CPSR.
So 17 registers are here in user mode. You can see that is the 17 registers are here. But what about the because I have already told you that is the 37 registers present in the ARM registers, ARM processors. So 37. So how many registers are remaining? That is the 20 registers are remaining. So what is the thing? ये 20 registers कहाँ से आएंगे? So I am telling you the story of behind this. So please one by one understand. Here you can see this is the interrupt. So this is the different modes. Okay, that is the FIQ, IRQ, undefined abort, and supervision. These are the 5 different modes. In these 5 different modes, different type of registers we can use. So देखो अभी यहाँ पे बात करूँ, अगर इस वाले रजिस्टर के लिए बात करूँ, सुपरवाइजर के लिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैंने कुछ रजिस्टर को आपको येलो करके दिखाया है. ये जो येलो कलर में जो रजिस्टर्स हैं, दीज आर द डिफरेंट रजिस्टर फ्रॉम द यूजर रजिस्टर. जो नॉर्मल आपको दिख रहा है R0 से R7, ये रजिस्टर यूजर में भी सेम थे, FIQ में भी सेम है. बाकी जो रजिस्टर येलो में ये डिफरेंट है. फिर से R15 आपका जैसे यहाँ पे था वैसा यहाँ पे है. तो ये जो रजिस्टर है आपके यहाँ पे 7 रजिस्टर यहाँ से आ गए. अभी मैं बताऊंगा, अभी आपको एक एक करके मैं काउंट कराऊंगा. यहाँ पे यहाँ तक जो रजिस्टर है वो यूजर मोड के 12 तक सेम रहेंगे. बाकी ये दोनों रजिस्टर चेंज होंगे और ये अलग होगा. सेम इसी तरीके से हर एक मोड में चेंज हो रहा है. ओके, सो वन बाय वन आई विल टेल यू कि व्हाई दिस रजिस्टर, न्यू रजिस्टर, व्हाई वी आर टेलिंग अबाउट द न्यू रजिस्टर्स. देखो यहाँ पे क्या है, हर एक मोड में एसपी जो रजिस्टर है वो डिफरेंट है. तो 5 मोड हो गए, 5 एसपी हो गए. तो 5 एसपी रजिस्टर वी आर यूजिंग एंड 5 एलआर रजिस्टर, एलआर लिंक रजिस्टर वी आर यूजिंग. डिफरेंट 5 मोड में 5 डिफरेंट रजिस्टर वी आर यूजिंग. 5 SPSR, दैट इज द सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर. इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये 5 रजिस्टर्स अलग से क्यों लेने पड़े, इसको भी मैं अभी बताऊंगा. तो डिफरेंट रजिस्टर्स आर हियर, दैट इज द 5 डिफरेंट रजिस्टर. और ये 5 रजिस्टर आप देख रहे हो, ये 5 रजिस्टर अलग हैं जो केवल FIQ में डिफरेंट है, बाकी सभी में सेम है. These 5 registers are used in FIQ, that is the 5 fast interrupt request. Fast interrupt request. IRQ होता है, that is the interrupt request, and FIQ means fast interrupt request. Okay, so 20 registers will come here. So 17 and 20 total registers number will be 37. So one by one I am telling you why it is needed in the LR, SP or different type of R8 to R12 and this SPSR. So one by one I am going. So just now just try to understand. Okay, so these registers depend on the interrupts, because user, I just tell you, in the system mode and the user mode, interrupts will not work. Interrupt will not work in system and user mode. Okay, but in other mode means FIQ, जो आपका FIQ है, fast interrupt request, IRQ, interrupt request, supervisor, मैं normal SU भी लिख देता हूँ, supervisor, abort and undefined. So in 5 modes में interrupts will work. Okay, only in 2 modes, system mode and the user mode, interrupts will not work. Now understand. Okay, so here the story is here. यहाँ समझने की कोशिश करना कि I just want to do one program. ये प्रोग्राम है आपका, इस लाइन पे चल रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये प्रोग्राम चल रहा है आपका नॉर्मल इस तरीके से चल रहा था. Okay, so once the program start from here, okay, you are doing the program, some program, you will reach here. At that time some interrupt come. Okay, interrupt actually होता क्या है, यहाँ मैं definition में भी लिख रखा है. Actually we are not covering this thing in the detail, but I am telling you interrupts are the events that temporarily suspend the main program. यहाँ पे जैसे ही interrupt आएगा तो ये main program जो आपका चल रहा है इसको वो यहाँ पे suspend कर देगा, यहाँ पे ये program कट हो जाएगा. Pass the control to the external sources.
यहाँ से ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस पॉइंट पे मान लो ये प्रोग्राम खत्म हुआ तो ये किसी एक्सटर्नल सोर्सेज पे प्रोग्राम चला जाएगा। ओके, देन दिस प्रोग्राम विल स्टार्ट, यहाँ पे भी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मान लो, तो ये प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा इंटरप्ट के आने से। आफ्टर दैट जब ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं दैट इज द ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR मीन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन का मतलब हो गया, ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, समझ लो कि यहाँ पे इंटरप्ट का एक प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे मेन प्रोग्राम खत्म हुआ, या ये इस तरीके समझ लो कि यहाँ पे इंटरप्ट आया तो मैं एक ब्रांच में चला जाऊंगा। ब्रांच में कहाँ चला जाऊंगा, ISR के पास। ISR के पास चला गया, वहां पे ISR का प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा। जब ISR का प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट होगा तो जो भी मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था, देखो इसके बाद ये प्रोग्राम चल रहा था, ये प्रोग्राम चल रहा है मेरा, अगर यहाँ पे इंटरप्ट आ गया है तो मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पहुंचना है। इसके बाद यहाँ से मैं गया था, उसी के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे जैसे ही मेरा इंटरप्ट वाला प्रोग्राम खत्म होगा, आई विल कम टू द दिस प्रोग्राम पे, यहाँ पे रीच कर जाऊंगा और फिर मैं पूरा एग्जीक्यूट करूंगा अपने प्रोग्राम को, तो मेरा पूरा ये प्रोग्राम रीच हो जाएगा। तो इंटरप्ट का काम क्या होता है, बीच में इंटरप्ट करके ये एक दूसरी ब्रांच में ले जाता है, वहां पे अपना पूरा एग्जीक्यूट कराता है। आफ्टर दैट इट विल रीच टू द सेम प्रोग्राम, टू द मेन प्रोग्राम। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दैट इज इंटरप्ट्स आर द इवेंट्स दैट द टेम्परेरीली सस्पेंड द मेन प्रोग्राम, pass the control to the external resources and execute their task. Their task means जो भी प्रोग्राम उसका चल रहा है वो काम होगा। If then passes the control to the main program where it had left off, जहां पे छूटा था वहां से आगे वाले पॉइंटर पे वहां पे आपको दे देगा प्रोग्राम। तो ये समझ में आ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरप्ट? प्लीज टेल मी, यस और नो? यस सर। ओके, इफ द इंटरप्ट इज क्लियर, तो आपको अभी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो इंटरप्ट क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रोग्राम काउंटर का आपको फंक्शनिंग पता है? व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ प्रोग्राम काउंटर? जल्दी से बताओ, किसी को याद है? सर अभी इट्स द हाँ एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम टू बी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसका एड्रेस रखता है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उसका एड्रेस अपने पास रखता है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर मेरा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हुआ था इस पॉइंट पे, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसका एड्रेस अपने पास रखेगा। ये समझ में आया? ये वाली चीज समझ में आएगी। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे खत्म किया है मैंने प्रोग्राम, जो मेरा नेक्स्ट जब मेन प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होगा वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, इस पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंटर का एड्रेस मुझे पता होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कराना है। ठीक है, अब प्रोग्राम काउंटर में ये स्टोर है, नेक्स्ट बिट का नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। अगर मैं प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को एक स्टैक में डाल दूं, ये मैंने जो ब्लॉक बनाया है दैट इज द स्टैक। और डालने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं पुश कर रहा हूं मींस स्टैक में मैं पुश कर दिया, ये स्टैक है आपका, और स्टैक में मैं क्या किया, स्टैक में मैं पुश कर दिया प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को, तो यहाँ पे ये स्टोर हो चुका है। ठीक है, आफ्टर दैट ये स्टोर रहेगा, इसने अपना एग्जीक्यूशन किया इंटरप्ट वाले प्रोग्राम को, तो लास्ट में जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो आपने स्टोर कर रखा है, जो एड्रेस आपने स्टोर कर रखा था पीसी का जो भी एड्रेस आपने स्टोर कर रखा है उसको पॉप कर लेगा। पॉप का मतलब वहां से बाहर निकाल लेगा। स्टैक का तो आपको पता ही है, स्टैक में जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, वही आप वहां से आप पुश कर सकते हो, वहीं से पॉप करते हो। तो जो आपका सबसे ऊपर क्या है, प्रोग्राम काउंटर ही रखा हुआ है, स्टैक में मैंने रखा है, तो उसको मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, पॉप कर लूंगा, तो प्रोग्राम फिर पॉप होके उसी एड्रेस से स्टार्ट होगा और एग्जीक्यूट होगा जब मेरा पूरा प्रोग्राम चल जाएगा। तो ये स्टोरी होती है। ठीक है, ये समझ आ गई ये स्टोरी कैसे वर्क करती है इंटरप्ट वाली? प्लीज बताओ फिर से, क्लियर है यस सर। एवरीवन? ठीक है, तो देखो ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो समझो। अब मैंने आपको एक चीज समझाया है कि नॉर्मली एआरएम प्रोसेसर्स क्या करते हैं। एआरएम प्रोसेसर्स जो होते हैं वो आपके रजिस्टर्स पे वर्क करते हैं, मेमोरीज पे वर्क करते नहीं है। ये बताया मैंने, कई बार बताया ये वाली कहानी। ठीक है, अगर मेमोरी पे वर्क नहीं करते तो स्टैक में क्या होता है, स्टैक के पास तो आपकी मेमोरी होती है। ठीक है, मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। स्टैक में स्टोर करने का मतलब कि मेमोरी में कहीं स्टोर कर रहे हो, और मेमोरी में स्टोर करने का मतलब है कि आपके प्रोग्राम को मैं स्लो कर रहा हूँ। मतलब मेमोरी की जो वर्किंग होती है वो आपके रजिस्टर की वर्किंग से स्लो होती है।
ठीक है, रजिस्टर आपके फास्ट होते हैं। और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि ARM प्रोसेसर या रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं वो रजिस्टर्स पे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैक यूज ना करके अगर कोई और चीज यूज करूँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या बनाया, इसलिए मैंने बनाया ये LR प्रोसेसर। ये LR प्रोसेसर बनाया लिंक रजिस्टर। मैं क्या करूंगा, एक डेडिकेटेड रजिस्टर रख दूंगा। डेडिकेटेड रजिस्टर मैंने रख दिया, दैट इज द लिंक रजिस्टर। यहाँ पे लिंक रजिस्टर मैंने रख दिया, और इस लिंक रजिस्टर में पीसी का जो भी आपका प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस था उसको स्टोर करा दिया। लास्ट में उसी प्रोग्राम काउंटर, उसी रजिस्टर से मैंने प्रोग्राम काउंटर से बाहर निकाल दिया, वहां से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दिया। तो मैंने क्या किया, हर एक डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में अगर ये वर्क करेगा, इफ इट इज वर्किंग विद डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, मतलब अगर मेरे पास इंटरप्ट आया IRQ इंटरप्ट आया, तो मैं क्या करूंगा, IRQ का LR यूज करूंगा। IRQ का LR, तो ये अलग अलग बने। IRQ का LR जो बना, एक IRQ का बन गया, एक LR FIQ के लिए बन गया, एक रजिस्टर, एक सुपरवाइजर के लिए, अबॉर्ट के लिए, अनडिफाइंड के लिए। तो मैंने 5 डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स, न्यू रजिस्टर बना दिए। ठीक है, वैसे R14 वाला ही ये काम कर रहा है, लेकिन मैं नए रजिस्टर, न्यू रजिस्टर बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी वर्किंग डिफरेंट टाइप की है। ठीक है, तो मैंने डेडिकेटेड बना दिए ये 5 रजिस्टर, डिफरेंट टाइप के 5 रजिस्टर। सो 5 रजिस्टर फॉर द LR। तो LR समझ गए, LR विल वर्क लाइक ए स्टैक, ओके, और फॉर डिफरेंट 5 मोड्स। सो 5 न्यू रजिस्टर you are using. So this concept is clear to you? हेलो बेटा बताओ। यस सर। सर बस Okay. एक बार आप वो हाँ। पॉप और पुश वाला फिर से बता देंगे? फिर से बता रहा हूँ, तो मैं इसका एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ यहीं पे। देखो, फिर से बता रहा हूँ, एक आपका मेन प्रोग्राम ये चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एक मेन प्रोग्राम, और यहाँ पे एंड होना था एक। ठीक, यहाँ पे मैं एक इंटरप्ट वाला प्रोग्राम लिख देता हूँ कि ये आपका एक इंटरप्ट वाला प्रोग्राम है। ओके, हुआ क्या, आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुए तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, यहाँ पे जैसे ही आए, इस वाले एड्रेस पे आए, तो आपको यहाँ पे मिल गया एक इंटरप्ट। ठीक है, जैसे ही इस लाइन पे आए हो, इंटरप्ट आपको यहाँ से मिल गया। इंटरप्ट मिला, इंटरप्ट का मतलब हो गया कि मैं ये वाला प्रोग्राम यहीं पे आप छोड़ दो, आपका क्या करो, इसके पास चले जाओ, इंटरप्ट वाले प्रोग्राम के पास। जैसे ही अब पीसी क्या करेगा, देखो यहां तक, इस एड्रेस तक आप आ चुके हो, एड्रेस 1 तक। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट एड्रेस है, मान लो एड्रेस 2 है, तो पीसी क्या करेगा, इस एड्रेस 2 को इंडिकेट करने वाला होगा। प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को के एड्रेस को इंडिकेट करता है। तो पीसी आपका इंडिकेट कर रहा था एड्रेस 2 को, बट एड्रेस 2 पे तो आप पहुंच नहीं पाए। लेकिन आपको जब फिनिश करना है, ये वाला प्रोग्राम आपका चलेगा, फिनिश हो जाएगा इंटरप्ट वाला। जब आप वापस आओगे तब आपको इस एड्रेस पे आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस था वो एक स्टैक में मैंने स्टोर करा दिया, स्टैक में स्टोर करा दिया। यहाँ पे लास्ट में जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो मैं स्टैक तो मेरे पास है ही, स्टैक के पास एक एड्रेस था, उस एड्रेस में क्या रखा था, पीसी रखा था, उस पीसी को फिर से मैं पॉप करा लूंगा, मींस बाहर निकाल लूंगा। तो वो एड्रेस मुझे कौन सा मिलेगा, इस एड्रेस 2 पे मिलेगा। तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाऊंगा। मेरे पास पीसी का मतलब ये वाला एड्रेस पहले मैंने स्टोर करा लिया, लास्ट में पुश करके ये स्टोर करा लिया, और पॉप करके यही मैंने वापस ले लिया। तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी मेरे प्रोग्राम एंड तक चला जाएगा एग्जीक्यूट होके। तो यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, सॉरी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, आफ्टर दैट वापस आया, इसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो समझ में आया कि स्टैक क्या करता है? इज इट क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। अब बहुत Okay. अच्छा क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड। अब मैं बस क्या कर रहा हूँ, LR में देखो क्या कर रहा था मैं इस बार। स्टैक एक्चुअली क्या है कि स्टैक इज द पार्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टोर करने का मतलब कोई चीज स्टोर कर रहे हो, दैट इज यू आर यूजिंग द मेमोरी। ठीक है, अब मेमोरी यूज कर रहे हो, और मैं आपसे कह रहा हूँ ARM भाई, ARM मेमोरी को यूज नहीं करेगा। बार बार कह रहा हूँ, ARM मेमोरी को यूज नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा। अब मेमोरी को यूज नहीं करेगा मतलब स्टैक को यूज नहीं कर सकता। अब स्टैक को यूज नहीं कर सकता तो मैं क्या करूं, मेरे पास ऑप्शन क्या है, तो मैं क्या करता हूं, डेडिकेटेड स्टैक की जगह एक डेडिकेटेड रजिस्टर ही बना देता हूं। तो उस रजिस्टर का नाम मैंने क्या रख दिया, दैट नेम ऑफ द रजिस्टर इज LR, लिंक रजिस्टर। और यहाँ पे लिंक रजिस्टर में पीसी को स्टोर कर दिया, जो भी पीसी का एड्रेस था वो लिंक रजिस्टर में आ गया। लास्ट में उस रजिस्टर से ही कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे वापस। LR में एक आपका रजिस्टर में रखा हुआ है पीसी का एड्रेस। ठीक है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा और वहां से अपना प्रोग्राम रन करा लूंगा। तो मैंने
मेमोरी को यूज ना करके रजिस्टर को यूज किया, बिकॉज ARM यूज द रजिस्टर्स ओनली. That's why I am using special type of register, that is the LR link register. Now story is clear? अभी समझ आ गया बेटा? यस सर. सर एड्रेस 1 से एड्रेस 2 के बीच की मेमोरी क्या होता है सर? एड्रेस 1 मतलब यहाँ पे देखो मेमोरी नहीं, एक्चुअली क्या है कि यहाँ इंटरप्ट आ गया था. इंटरप्ट का मतलब कि मेरा प्रोग्राम यहीं पे अब रुक जाना चाहिए. ये वाला जो मेन प्रोग्राम चल रहा था वो इंटरप्ट आने की वजह से रुक गया. अब मैं इंटरप्ट वाले प्रोग्राम पे चला गया. एक्चुअली मोस्टली क्या होता है कि हार्डवेयर होते हैं, तो हार्डवेयर इंटरप्ट भेज देते हैं कि मुझे चलाओ, मेरे प्रोग्राम को चलाओ, फिर तुम एग्जीक्यूट करना बाद में. या बीच में कुछ इंटरप्ट यूजफुल भी होते हैं कि ये वाला हार्डवेयर चल जाए, उसके बाद मेन प्रोग्राम पूरा चलेगा. ठीक है, तो हम इंटरप्ट भेज के वो वाला काम करा लेते हैं मेन प्रोग्राम के बीच में. इस तरीके से इंटरप्ट का यूज हो जाता है. इज इट ओके? तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम पूरा फिनिश नहीं हुआ था, बीच में ही मैंने दूसरा प्रोग्राम चला लिया, फिर से उस प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट करा लिया जो हमारा मेन प्रोग्राम था. ये हमारा मेन प्रोग्राम है. नाउ इज इट क्लियर? यस ठीक है, सर. ओके. चलो, तो LR की कहानी क्लियर हुई. 5 नए रजिस्टर आप सीख गए कि 5 नए रजिस्टर कहाँ से आए थे. 17 रजिस्टर के बारे में तो मैं बता चुका था, 17 रजिस्टर्स के बारे में. नाउ आई हैव टोल्ड यू अबाउट द 5 LRs. मैंने 5 और कवर कर दिए. नाउ सेम कहानी होगी SP के लिए. चलो पहले मैं ये वाली कहानी चलो बता देता हूँ कि फर्स्ट आई विल गो फॉर द LR का मैंने बता दिया है. जस्ट ओके, दो चीजें अभी बताई. दैट इज द फ्लैग रजिस्टर. देखो फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, CPSR करंट प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर. ओके, एंड SPSR दैट इज द स्टेटस, ये क्या था, स्टेटस सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर. सेव्ड प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर SPSR. अब चलो यहाँ पे समझते हैं कि ये 5 क्यों जरूरत पड़ी. फिर से डिफरेंट 5 मोड है ये वाले. ठीक है, और इनके लिए फिर से मैंने 5 टाइप के स्पेशल रजिस्टर बनाए ये वाले. ठीक है, छोटा सा दिख रहा होगा भले ही, या बड़े डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे SPSR ये 5 अलग से बनाए मैंने, येलो कलर में दिखाए. तो ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं. CPSR तो फ्लैग रजिस्टर की तरह यूज हो जाएगा, बट SPSR की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो प्लीज अंडरस्टैंड. सेम कहानी है, फिर से वही हुआ कि मेरे पास क्या आया. फ्लैग रजिस्टर थोड़ा सा डिफरेंट है. देखो अब इस बार रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्लैग रजिस्टर देखो ये मेन प्रोग्राम है. इंटरप्ट आ गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरप्ट मिल गया. इंटरप्ट आया तो मेरे पास फ्लैग रजिस्टर ये है जो करंट स्टेटस बता रहा है प्रोग्राम का. ओके, बट यहाँ पे करंट स्टेटस तो बता दिया. अब मुझे क्या है कि मुझे चाहिए जो भी आपका इंटरप्ट आया है, मैंने क्या किया इसको फिर दोबारा समझो कि ये जो CPSR है, ये CPSR पहले वर्क कर रहा है यूजर्स में, यूजर के लिए, यूजर या सिस्टम मोड के लिए. ओके, अब इंटरप्ट्स आपके आए, इंटरप्ट्स आए तो RQ FIQ IRQ या इन मोड्स के लिए आएंगे. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक जो भी आपका फ्लैग का आपके फ्लैग की जो वैल्यू चल रही है, जो एड्रेस चल रहा है, उसको एक स्पेशल टाइप के रजिस्टर में स्टोर कर दूंगा. दैट इज द SPSR. मैं क्या करता हूं कि यूजर के जो भी आपके वैल्यू है उसको SPSR में स्टोर कर देता हूं. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि SPSR जो भी IRQ मोड का, इसके मोड का जो भी आपका फ्लैग आया है, देखो इसके जो भी इसका प्रोग्राम चलेगा, इसके प्रोग्राम का CPSR में ही स्टोर हो जाएगा. CPSR, ठीक है. इसलिए देखो ये CPSR तो स्पेशली लिखे हुए हैं, जो इंटरप्ट वाले हैं वो तो इस वाले CPSR से शो हो जाएंगे. बट आपको यूजर पे फिर दोबारा से वापस आना है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने CPSR का जो रजिस्टर है पहले यहाँ पे स्टोर कर दूंगा. मैंने स्टोर कर दिया, लास्ट में इसको फिर दोबारा इसके पास ले आऊंगा. CPSR में स्टोर किया और CPSR को SPSR में स्टोर कर दिया. लास्ट में उस SPSR से CPSR को बाहर निकाल दिया, जैसा स्टैक में कर रहे थे. तो वही फ्लैग मुझे शो होने लगेगा अगले इंस्ट्रक्शन के लिए, और फिर से मैं एग्जाम को अपने क्या कहते हैं मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूंगा. तो सेम कहानी उसी तरीके की है कि स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स में यूज कर लेता हूँ फॉर द फ्लैग, और फ्लैग को स्टोर करा लेता हूँ क्योंकि मुझे यूजर से चलना है और वापस यूजर पे ही लौट के आना है, यूजर मोड में ही लौट के आना है. बीच में जो भी मोड मेरे पास आता है उस मोड की फ्लैग्स को मैं SPSR में स्टोर करता जाऊंगा. और इस प्रोग्राम का अगर कोई फ्लैग है वो अपने आप CPSR जो भी यहाँ पे लिखा है CPSR में स्टोर होगा. वो अलग है, ये अलग है. ठीक है, तो ये कहानी सेम ही हो जाती है कि आप स्टोर कर रहे हो यूजर के
CPSR को SPSR में जो इंटरप्ट वाले आए, और फिर वापस से SPSR वाले से CPSR वाले में स्टोर कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है उसी तरीके से। तो 5 टाइप के SPSR की जरूरत हो जाती है डिफरेंट मोड्स में। तो बाकी 5 फिर से हमें मिल गए ये वाले। तो 5 हमें LR मिल गए थे, 5 SPSR मिल गए। नेक्स्ट अगर आप बात करो, नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा दैट इज द SP, स्टैक पॉइंटर। अब स्टैक पॉइंटर को समझो कि स्टैक पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ी। स्टैक पॉइंटर, आप कहेंगे सर स्टैक पॉइंटर, यहाँ पे याद रखना स्टैक नहीं है, दैट इज द स्टैक पॉइंटर। तो ये मेमोरी नहीं है, दिस इज द रजिस्टर, ये एड्रेस को शो कर रहा होगा स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे देखो समझो, अगर मेरे पास एक प्रोग्राम है, दिस इज माई प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम, और ये मेरा एक इंटरप्ट वाला प्रोग्राम है, मैंने प्रोग्राम चलाया, पुश किया। तो यहाँ पे क्या पर्टिकुलर क्या किया, इस प्रोग्राम में मैं कोई डेटा एक पुश करा रहा हूँ, कोई डेटा मैंने पुश कराया, ठीक है, और ये चला आगे, डेटा पुश हुआ, बीच में इंटरप्ट आ गया। जैसे ही पुश होने के बाद कुछ देर बाद इसमें इंटरप्ट आ गया, तो ये फिर से इंटरप्ट वाले प्रोग्राम में चला गया। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, एक इंटरप्ट वाले प्रोग्राम में, इंटरप्ट वाला प्रोग्राम मान लो ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और ये वाला प्रोग्राम आप लिख रहे हो इंटरप्ट वाला, आपने भी एक डेटा को पुश करा दिया यहाँ पे। यहाँ मान लो मैंने A पुश कराया है, आपने यहाँ पे B पुश करा रखा है, ठीक है, और आपने क्या किया कि मैंने पुश तो करा दिया, लेकिन आपने कहा मुझे पॉप कराने की जरूरत नहीं है, मुझे पॉप की जरूरत नहीं है, मैं पॉप नहीं करा रहा। तो आपने पुश से ही काम चला लिया और आपका पूरा ये काम हो गया, आपका एग्जीक्यूशन हो गया इंटरप्ट का, ठीक है, आपके प्रोग्राम का एंड हो गया यहाँ पे। यहाँ से मैं वापस आया, इस वाले पॉइंटर के पास वापस आया, और फिर से मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मैंने पॉप कर रखा है अगर, तो जो डेटा पॉप होके आएगा वो इस टाइम A नहीं आएगा, इस टाइम जो आपका B जो वाला डेटा था, B वाला, वो B वाला डेटा यहाँ पे पॉप करके निकल आएगा। तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, फिर से रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले से ही ऐसा करते हैं कि इंटरप्ट के लिए पर्टिकुलर एक स्टैक पॉइंटर अलग से ले लेते हैं कि अगर मैं स्टैक पॉइंटर्स को यूज करूंगा फॉर द इंटरप्ट, तो मैं एक अलग से डेडिकेटेड रजिस्टर रख लेता हूं। अगर वो इस वाले प्रोग्राम में यूज हो रहा है तो वो यहीं पे यूज हो जाएगा, इस वाले प्रोग्राम पे हिंड्रेंस नहीं करेगा। तो अलग से मैं क्या करता हूँ, SP रजिस्टर्स को लेता हूँ, जिसको मैं R13 बोल रहा हूँ। तो 5 टाइप के 5 मोड्स हैं, तो 5 टाइप के आपके SP रजिस्टर स्टैक पॉइंटर्स में ले लेता हूँ, जिससे आपका ये B नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अपने आप या तो पॉप हो जाएगा, जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो अपने आप, अगर पॉप नहीं भी कर रहे हो तो ये B आपका पॉप हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आपके पास डेडिकेटेड है। और यूजर मोड के लिए अलग से डेडिकेटेड है R13, यहाँ पे आपको A ही मिलेगा, तो आपका प्रोग्राम फिर रॉन्ग ना हो। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, स्टैक पॉइंटर भी अलग से बना लिए पांचों मोड के लिए। तो 5 रजिस्टर्स यहाँ पे भी जरूरत पड़ गए आपको, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो, ये समझ आया कि नहीं बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। एक ही कंसेप्ट अगर स्टैक पॉइंटर वाला आपको याद रहेगा, बस ये है कि मैं डेडिकेटेड रजिस्टर डाल दे रहा हूँ हर एक में, जहां मुझे लग रहा है कि ये हिंड्रेंस पैदा करेगा तो मैं डेडिकेटेड उसके लिए बना दिया। तो इसी तरीके से 555 ये बनते गए। लास्ट में आपका एक टाइप का और रजिस्टर बचता है, दैट इज द FIQ ऑफ RIQ। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं इसमें, लास्ट यही बता के फिनिश करूंगा। दैट इज द, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, IRQ क्या होता है? IRQ होता है आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ओके। एंड FIQ आपका होता है दैट इज द फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस कि ये फास्ट क्यों है और ये स्लो क्यों है, और यहाँ पे ये 5 अलग से मुझे रजिस्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये 5 रजिस्टर्स की। तो इसको समझने की कोशिश करो। नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल जब हम कोई भी प्रोसेसर ले लें, अगर मैं IRQ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, IRQ इंटरप्ट लिया मैंने, IRQ इंटरप्ट अगर आपके पास आया तो ये क्या करेगा, ये जाएगा और ये जाएगा, यहाँ पे 2 काम होते हैं, दैट इज स्टोर एंड लोड। ये क्या करेगा, जो भी यहाँ पे IRQ की कुछ डेटा है वो आपका स्टोर करेगा मेमोरी में जाके, और फिर द्वारा मेमोरी से लोड करेगा, ठीक है। आप कहोगे सर ये रजिस्टर पे काम करना चाहिए था, ठीक है, तो रजिस्टर, इसके लिए तो हमारे IRQ के लिए हमारे रजिस्टर की हमें जरूरत नहीं है, मेमोरी नॉर्मल में क्या होता है IRQ रजिस्टर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्लो रजिस्टर है, क्योंकि ये मेमोरी में जाके स्टोर करते हैं
और मेमोरी से जाके लोड कर रहे हैं दोबारा से। तो मैं कह रहा हूँ IRQ नॉर्मली हर एक रजिस्टर IRQ ही रजिस्टर टाइप का ही होता है जो यूज करता है और स्लो रजिस्टर होता है। बट अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि स्टोरेज और लोड जो है इसको मैं मेमोरी से ना करूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ कि ARM में आपका मोस्टली क्या है कि आपका रजिस्टर्स में हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मेमोरी में ना तो स्टोर करूंगा ना मेमोरी से लोड करूंगा, मैं इसके लिए डेडिकेटेड रजिस्टर बना देता हूँ। और उस डेडिकेटेड रजिस्टर्स का मैंने नाम दे दिया दैट इज R8 से R12 तक जो भी रजिस्टर्स हैं वो मैं यूज करूंगा एज ए स्टोरेज एंड एज ए लोड। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है R8, 9, 10, 11, 12, तो ये रजिस्टर जो 5 रजिस्टर्स थे वो मेमोरी की जगह यूज हो रहे हैं। डेडिकेटेड रजिस्टर मैंने FIQ के नाम से बना दिए कि फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट। नॉर्मल इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगी, IRQ होता है जो, वो आपका मेमोरी के साथ ही वर्क करेगी, वहां पे मेमोरी से स्टोरेज हो रहा है और लोड हो रहा है। बट फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट में क्या हो रहा होगा, डेडिकेटेड रजिस्टर है यहाँ पे फास्ट वर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फास्ट ये वर्क करेगा, लोड करेगा, क्योंकि डेडिकेटेड रजिस्टर है तो वर्क जल्दी हो जाएगा। सो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं दैट इज द फास्ट इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और IRQ जो मेमोरी के साथ डील कर रहा होता है उसको बोलते थे IRQ दैट इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो ये दोनों डिफरेंस है। और यहाँ पे मेमोरी की जगह हम लोगों ने क्या किया, स्पेशली 5 टाइप के रजिस्टर्स को यूज कर लिया, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि दीज आर द न्यू टाइप ऑफ रजिस्टर्स, और इनको हमने 5 नए टाइप के रजिस्टर्स का नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो अलग अलग 5 टाइप के 20 टाइप के रजिस्टर्स आपके पास आ गए थे। 17 तो आपने काउंट कर लिए थे यूजर मोड में, 16 आपके जनरल पर्पस रजिस्टर थे, एक रजिस्टर आपका CPSR फ्लैग रजिस्टर था, उसके बाद आपके पांच LR आपके आए, 5 स्टैक पॉइंटर टाइप के स्पेशल आए, 5 आपके FPSR टाइप के आए, और 5 आपके FIQ टाइप के आए। ठीक है, जो लास्ट में R8 से R12 तक है वो FIQ रजिस्टर है। ओके, तो 20 रजिस्टर्स ये हो गए, तो 17 एंड 20 37 रजिस्टर्स हम लोग यूज करते हैं ARM में। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द रजिस्टर्स कि हम 37 रजिस्टर्स क्यों यूज कर रहे हैं और 37 रजिस्टर्स किस तरीके से हम लोगों को शो होते हैं। तो अब आप इस डायग्राम को समझ सकते हो। वैसे आपको बहुत टफ लग रहा होगा डायग्राम देख के कि क्या लिखा हुआ है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि 17 रजिस्टर ये है, यहाँ पे ये रजिस्टर सेम ही है, ये 5 रजिस्टर स्पेशल टाइप के हैं, और 2 टाइप के ये 7 रजिस्टर यहाँ पे ये स्पेशल, एक फ्लैग में स्पेशल, तो 8 रजिस्टर आपके FIQ में स्पेशल हो गए, और बाकी में 3 स्पेशल रजिस्टर है। तो टोटल मिला के इफ यू विल काउंट दैट इज द 37 टाइप ऑफ रजिस्टर। भले ही यहाँ पे काउंट आप 37 इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट इज द 37 रजिस्टर। समटाइम्स इनको हम लोग बैंक्ड रजिस्टर भी बोल देते हैं, बैंक्ड रजिस्टर्स, जो स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स बोल रहा हूँ, जो 20 रजिस्टर्स निकल के आए, दैट इज द बैंक्ड रजिस्टर्स। ओके, सो रिमेंबर द नेम। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द रजिस्टर कि रजिस्टर अलग अलग मोड में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दी है, डिटेल तो मैंने आपको बताया है, बट व्हाट इज द प्रोग्राम काउंटर, व्हाट इज द LR, व्हाट इज द SP FIQ मोड में ये कौन कौन से रजिस्टर हैं, बैंक रजिस्टर बोलते हैं। ओके, इस पे क्योंकि इसके ऑपरेटिंग मोड्स इसके स्पेशली हो जाते हैं और वर्किंग स्पेशली हो जाती है, तो हम लोग बैंक रजिस्टर बोल देते हैं। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द रजिस्टर। सो रजिस्टर्स आर क्लियर टू यू? जल्दी से बताओ, यस और नो। एक बार रिवाइज करना है इसको। हेलो, मैं पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ।